Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit, fine, healthy in your homes, and we all are praying that schools will reopen soon. But till then, we have to continue with our online classes and we have to continue with our video classes. Children, if you're watching the videos regularly, then you must be aware that we are doing chapter 11 of your EVS textbook, and the name of the chapter is the means of transportation. Children, this unit or this chapter we have started 2-3 videos back. I have explained to you the meaning of transport, the meaning of means of transport, and why do we need transport, what is the need for traveling. All these we have discussed, and we have also discussed 3 types of means of transport. Let's revise first. First of all, transport. Meaning of transport is carrying something from one place to another is transport. Transporting something means taking something, moving something from one place to another. Means of transport is the vehicles which are used to carry people and goods from one place to another. The vehicles that are used to carry or to move people and goods both from one place to another, they are called means of transport or means of transportation, both. But the important question is, why is transportation required? Why do we use means of transport? What is the need of using means of transport? Which means, why do we need to travel? हम travel ही क्यों करते हैं? This also we have discussed that there are various reasons that for that we have to travel, and the most important one is that we have to go to a place of work. First reason is that we have to travel to the place of work. Everybody is not lucky to have their place of work at home or near their homes, so they have to travel. Second is to buy things, we have to go to market, we have to go to neighborhood places for certain requirements, bank, hospital, post office and other nearby places. To meet our friends and relatives who are living far from our residence, those who are living in some other cities or other states. Then we travel for some religious or social activities. Then we also travel to spend our holidays to some distant place. Then we also travel for pleasure. There are some people who travel for pleasure. Their hobby is to travel. So there are various reasons for which the people travel. And for traveling we need means of transport. We need some vehicles. So there are 3 categories of means of transport that we discussed. That is land transport, water transport and air transport. Okay, land transport we have discussed, water transport also we have discussed, air transport we have partially discussed. बहुत अभी मतलब उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था, काफी कुछ डिस्कस भी किया था. We'll continue with air transport. Land transport, as I have explained to you, that in land transport the vehicles that move on road as well as the vehicles that move on track, both will come under this category of land transport. Apart from road and track vehicles, the animal carts will also come under this category of land transport. Okay. The vehicles that move on road, the vehicles that move on track, and the vehicles which are pulled by animals.
like bullock cart, camel cart, horse carriage या horse cart जिसको बोलते हैं, टोंगा जिसको बोलते हैं, all these will come under the category of land transport, and this we have already discussed. Then coming to water transport, under this I have told you that this is, I would say, is the oldest means of transport. बहुत साल पहले यही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होता था. बोट्स के बारे में आपने सुना होगा, कई स्टोरीज में इसके बारे में पढ़ा होगा. एंड गिवन यू एग्जाम्पल कि रामायण में भी मेंशन है केवट जो था, जो कि बोटमैन को केवट बोलते हैं. तो बोटमैन था जिसकी बोट में श्री राम जी ने नदी पार की थी. तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है. एंड एट वन टाइम इट यूज टू बी द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक ऐसा समय था जब इसको सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी माना जाता था. बट नाउ इट इज नॉट दैट वेरी चीप. देन इसके अंदर सिर्फ बोट ही नहीं है, इसमें आता है आपका शिप आता है, देन मोटर बोट्स आती हैं, सबमरीन है, होवरक्राफ्ट है. ये सारे जो है मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं. देयर आर वाटर स्कूटर्स ऑल्सो, लेकिन वाटर स्कूटर्स जो है वो वाटर स्पोर्ट्स में आता है, ट्रेवलिंग में नहीं यूज होता है. बट इट इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट. जो वाटर स्कूटर आपने सी बीच के पास देखा होगा, अगर आप कभी सी बीच पे गए होंगे तो वहां पर आपको दिखेगा वाटर स्कूटर्स. याट भी यूज होते हैं, याट जिसको बोलते हैं, वो भी मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है. एक टाइम था जिसको बोलते हैं ना वास्को डी गामा, who traveled through ship and he discovered India. वो रास्ता भूल गया था और फिर शिप से वो ट्रेवल करते करते इंडिया पहुंच गया था. देन देयर वाज कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका. तो इस तरह से जो है लोग पहले शिप से ही ट्रेवल करते थे. वाटर सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है. और जो शिप है वो आज भी यूज होती है. शिप्स आर यूज टू कैरी वेरी हैवी एंड वेरी बल्की गुड्स को उठाने में काम आती है. आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट पोर्ट्स कि पोर्ट्स होते हैं जिनको हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं. वहाँ मंकीज नहीं होते हैं, ऑफकोर्स बंदर नाम है, लेकिन वो बंदरगाह हिंदी में बोलते हैं उसको. एक्चुअली में वो वहाँ पे शिप्स होते हैं, बंदर नहीं होते हैं. उसको इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है. और ये पोर्ट हर जगह नहीं होते हैं. कहाँ पे होते हैं? जो शहर जो है वो सी के किनारे होते हैं, समुद्र के पास, सी कोस्ट के पास जो शहर बसे होते हैं, सी कोस्ट के पास, वहां पर ही पोर्ट होते हैं. क्योंकि समुद्र चाहिए ना, पानी चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर चाहिए. तो वाटर कहाँ पे मिलेगा? समुद्र में या रिवर्स में. तो ज्यादातर समुद्र तट के पास ये पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स खड़ी होती हैं. यहाँ पर सामान लोड किया जाता है या अनलोड किया जाता है. जैसा मैंने बताया, बल्कि सामान, हैवी सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है. पैसेंजर शिप्स होते हैं, क्रूज होते हैं, लोग ट्रेवल करते हैं क्रूज में. अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी है तो शिप इज वेरी गुड. इंजॉय करते हुए जा सकते हैं बहुत मजे में. तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए शिप्स यूज होते हैं. अदरवाइज फन राइड्स के लिए देयर आर मोटर बोट्स, देयर आर बोट्स. जो लोग वाराणसी के हैं डेफिनेटली उन्होंने तो बोट राइडिंग की ही होगी गंगा में. तो ये हम हमारे लिए कॉमन है, हमने देखा हुआ है मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना. सारा नहीं तो कुछ तो देखा ही हुआ है. फिर हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की, विच इज द फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट जो है इट इज फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव. फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव का मैंने आपको मतलब बताया था, विच इज वेरी कॉस्टली, वेयर यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी. तो ये सबसे फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. लेकिन एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये फास्टेस्ट है. जहां जाने में आपको 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाता है, वहां आप कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, विद इन फ्यू आवर्स. किसी जगह को जाने में, कहीं पर आपको पहुंचने में अगर आपको 24 आवर्स या उससे ज्यादा लगता है, पर अगर आप बाय एयर ट्रांसपोर्ट जाएंगे तो यू विल रीच वेरी फास्ट
इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इन वेरी शॉर्ट टाइम, विद इन आवर्स, घंटों में पहुंच जाएंगे, 1-2 घंटों में पहुंच जाएंगे। दूसरे कंट्री में जब जाना होता है तो फ्लाइट से ही जाते हैं, है ना, बस से तो जाते नहीं है दूसरे कंट्री में, इधर शिप और फ्लाइट, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, ये सबसे कॉमन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन एंड तो रॉकेट और स्पेसशिप भी होते, पर उसको कॉमन मैन तो यूज करते नहीं है उसको, तो हम उसको अभी नहीं काउंट कर रहे हैं। हम एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की बात करेंगे। तो हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप बहुत जल्दी कहीं किसी जगह पहुंच जाएंगे, घंटे भर में कहीं भी पहुंच जाएंगे, जहां जाने में आपको 15-16 घंटे या फिर आपको एक दिन पूरा लग जाता हो। तो ये जो फास्ट है, शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें पहुंचाता है, इसलिए शायद महंगा भी है ना। अच्छा, फिर उसके अलावा ना हॉट एयर बलून्स भी होते हैं। ट्रेवल करने के काम नहीं आता, फन राइडिंग में काम आता है, इसमें बैठकर आप फन राइडिंग कर सकते हो, बट अगेन एयर में होता है, इसीलिए एयर ट्रांसपोर्ट। देन ग्लाइडर्स भी होते हैं, अभी तो ग्लाइडर नहीं मिलता है, लेकिन ग्लाइडर्स भी एयर ट्रांसपोर्ट में होते हैं, ये बिना इंजन के होते हैं। ग्लाइडर्स दे आर विदाउट इंजन। इसमें क्या करते थे लोग, ग्लाइडर में ना एक ऊंची पहाड़ी पे चले जाएंगे, फिर उस ग्लाइडर को ऐसे पकड़ने का उसमें बना होता है, आपको होल्ड करने का, उसको पकड़ के फिर वहां से जंप करते हैं। यस, दे जंप फ्रॉम द हाइट, उसको पकड़ के तो ग्लाइड करता है। जैसे आप कागज का एरोप्लेन बनाते हो ना, पेपर का, क्लास में पेपर फाड़ फाड़ के बनाते थे, तो ऐसे करके फेंकते हो तो कैसे जाता है, ऐसे करके ग्लाइड करता है ना, सेम वैसे ही ग्लाइड करता है। ग्लाइडर को लेके जाएंगे, वो ऐसे करके आराम से आप नीचे उतर जाओगे, दैट इज ग्लाइडर। अभी भी लोग फन के लिए ग्लाइडर्स कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, जो मैं पिछले वीडियो में भी मैंने स्टार्ट किया था, अबाउट हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स जो हैं, दे आर वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई एम यूजिंग द वर्ड यूजफुल क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, कोई ऐसे प्राकृतिक आपदा, कोई ऐसी परेशानी आती है नेचर की तरफ से, लाइक लैंडस्लाइड है, फ्लड है या अर्थक्वेक है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है ना, बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजलेस हो जाते हैं। रोड ही नहीं है, रोड टूट गई लैंडस्लाइड में, या भूकंप में आके रोड डैमेज हो गई, और या फिर फ्लड में रोड डूब गई, ट्रैक्स डूब गए, तो ऐसे सिचुएशन में जो एयर ट्रांसपोर्ट में जो हेलीकॉप्टर है वो सबसे यूजफुल होता है फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल। लोगों तक जो राहत का सामान पहुंचाने में, फूड, मेडिसिन, ये सब, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ऑफ कोर्स, ये सब पहुंचाने में हेलीकॉप्टर सबसे यूजफुल होता है। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जाता है सामान, खाने की चीजें, मेडिसिन के पैकेट्स, जहां पर बाय where it is difficult to reach, where it is impossible to reach by any other means of transport। ना ट्रेन से जा सकते हैं, ना बस से जा सकते हैं, मतलब ना लैंड ट्रांसपोर्ट काम आता है, ना वाटर ट्रांसपोर्ट काम आता है। तो ऐसे टाइम में जो एयर ट्रांसपोर्ट है, द हेलीकॉप्टर, दीज आर वेरी हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा वो यूजफुल होते हैं ऐसे सिचुएशन में। इवन डेंस फॉरेस्ट में या किसी माउंटेन के ऊपर कोई प्रॉब्लम, कुछ काम से अगर जाना है, तो माउंटेन के ऊपर भी पीक पर जाना है, तो भी हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं। एंड ये एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है देश में, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, या भूकंप मतलब अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, ऐसे में ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ कॉस्टली में नहीं गिनेंगे, इट्स वेरी यूजफुल ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड एक ना छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। अब और भी बहुत सारा करेंगे, बट जस्ट टू हैव अ रिकैप हम एक्सरसाइज करते हैं।
ज़्यादा नहीं, बस 3 फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, छोटे छोटे से, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी से रिलेटेड। Dash rail system has been introduced Dash रेल सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली एंड कोलकाता। कौन सा रेल सिस्टम दिल्ली एंड कोलकाता में इंट्रोड्यूस किया गया है? दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। डू यू रिमेंबर दैट? विच रेल सिस्टम? इट इज मेट्रो रेल सिस्टम। यस, METRO। Metro rail system has been introduced in Delhi and Kolkata, and I have told you that this system is used within the city. मतलब दिल्ली में है तो वो दिल्ली के अंदर ही यूज हो रही है, कोलकाता में है तो कोलकाता के अंदर ही यूज होगी। इट इज यूज्ड विद इन द सिटी, मेट्रो रेल सिस्टम। डैश ट्रांसपोर्ट is the oldest means of transport. Okay, which is the oldest means of transport? सबसे जो पुराना सबसे oldest means of transport कौन सा है? Which is the oldest means of transport? Water transport. Water transport is the oldest means of transport. Then dash transport is the fastest which transport is the fastest means of transport? It is air transport. Yes, air transport is the fastest means of transport. चलिए, तो ये हमने छोटा सा रिकैप करेंगे। Now we are going to do an exercise where you have to sort them. You have to sort the vehicles in 3 categories: water transport, land transport and air transport. मतलब mixed vehicles के नाम लिखे होंगे. You have to sort them and you have to put them in 3 columns, in 3 categories. Okay, so put the vehicles, names of vehicles under their respective column. Put the names of vehicles under their respective column. तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ हम पहले vehicles के नेम लिखेंगे, ठीक है। बस, बोट, जीप, होवरक्राफ्ट, कार, ट्रेन,
water scooter, hot air, These are the names of some vehicles. ये कुछ vehicles के हमने यहाँ पर नाम लिखे हैं. Some vehicles are there. अब इनको हम कर रहे हैं. यहाँ पर मैं लिखती हूँ land transport, water transport, नीचे लिख देते हैं. And air transport. Okay. 3 categories are there, and now you have to select. फर्स्ट वन इज बस. बस किस कैटेगरी में आता है? लैंड, वाटर और एयर. इट कम्स अंडर लैंड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट इज बोट. एवरीबडी नोज दैट बोट मूव्स ऑन, फ्लोट्स ऑन वाटर. नेक्स्ट इज जीप. जीप मूव्स ऑन रोड. Then we have hovercraft. You know, hovercraft moves on water. होवरक्राफ्ट जो है वो पानी पर मूव करता है. होवरक्राफ्ट मूव्स ऑन वाटर. देन ये हो गया हमारा. अंडरलाइन करते जा रहे हैं जो भी हम लिखते जा रहे हैं, दैट वी आर अंडरलाइनिंग, सो दैट हमारा हो जाएगा कि हमने ये सारे कर दिया है. Next is car. Car, very easy. Land transport. Train. ट्रेन ट्रैक पे चलती है, पर ट्रैक कहाँ पे होता है? लैंड पर. तो ये भी आ जाएगा लैंड ट्रांसपोर्ट. उसके बाद क्या है? कैमल कार्ट, जो ऊंट गाड़ी जिसको बोलते हैं. बेसिकली राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, डेजर्ट में, या गुजरात में भी देखने को मिलता है. आपको पता है गुजरात में ना एक व्हीकल चलता है, उसको छकड़ो बोलते हैं. आपने शायद नाम नहीं सुना होगा. छकड़ो बोलते हैं. हम लोग यहाँ पे गाड़ी छकड़ा वर्ड यूज करते हैं ना. छकड़ो इज एक्चुअली, पता क्या होता है वो? इट इज अ बाइक एंड इट हैज उसके साथ, बाइक के साथ एक ट्रॉली जैसा लगा होता है. सामने से वो बाइक जैसा होता है और पीछे उसमें ना ट्रॉली जैसा लगा होता है टू लोड गुड्स ऑन दैट. उसके ऊपर सामान रखते हैं. मतलब उसका फ्रंट पार्ट जो है इट इज लाइक अ मोटर बाइक, और पीछे का जो पार्ट होता है वो ट्रॉली उसमें लगी होती है और उसमें काफी सारा सामान लग सकते हैं. बट यू विल नॉट फाइंड दैट छकड़ो इन उत्तर प्रदेश. हमारे यूपी में नहीं दिखेगा. आई हैव सीन दैट इन गुजरात. गुजरात में उसको देखा था. वो उसका जो ड्राइविंग जो पार्ट है वो बाइक वाला रहता है और पीछे जो गाड़ी होती है उसमें सामान के लिए सामान रख सकते हैं. इट्स लाइक अ ट्रॉली सॉर्ट ऑफ. तो उसको छकड़ो वहां पे बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो लैंड व्हीकल. आई जस्ट आई वॉज राइटिंग दिस, वो मुझे याद आ गया छकड़ों के बारे में. दिस इट्स नॉट डिफरेंट. इट्स लाइक बाइक जैसी ही होती है, बस मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइक एंड ट्रॉली. बाइक आगे से और उसके पीछे सामान लाने का ट्रॉली. ठीक है, चलिए काम पे आते हैं. हमने होवरक्राफ्ट कर लिया, ट्रेन कर लिया. ट्रेन यूज
लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, देन आगे सबमरीन। सबमरीन क्या है? मरीन से ही समझ में आता है कि वो पानी की चीज है। मरीन ना वाटर के लिए यूज होता है, तो सबमरीन इधर आ जाएगा। देन वाटर स्कूटर। अब नाम में वाटर है तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट ही है, नाम से ही पता चल रहा है, तो यहां हम लिखेंगे वाटर स्कूटर। देन वी हैव हॉट एयर बलून। अब इसमें एयर वर्ड है, यानी कि ये एयर ट्रांसपोर्ट है, इससे पता चल जाता है, तो इट इज एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज ट्रक। सबने देखा है भारी भारी ट्रक भारी सामान लादकर रोड पर चलती है, तो इधर आ जाएगा ट्रक, TRUCK, ट्रक। फिर है हमारा बाइक। बाइक अगेन जो है वो रोड पर चलती है। देन वी हैव ई रिक्शा। ई रिक्शा जैसे कि हम टोटो के नाम से भी जानते हैं, है ना, तो वो तो बहुत सबने देखी है, आजकल वाराणसी में बहुत यूज होता है टोटो। इट इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट। Then we have ship. Ship on water. स्पेसशिप तो है, ये सब शिप है, तो ये पानी वाला है। स्पेसशिप होता तो हम इसको एयर में मानते हैं। फिर है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर वाटर नहीं है, ये तो एयर ट्रांसपोर्ट है। फिर क्या है? एयरबस। एयरबस भी ना दिखने में एरोप्लेन जैसी होती है, लेकिन ये इट्स एन एयर ट्रांसपोर्ट। इट्स एन एयर ट्रांसपोर्ट, एयरबस। फिर है एरोप्लेन। एरोप्लेन इज, एवरीबडी नो दैट इट इज एन एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन। तो हमने ये सारा कर लिया, सारे व्हीकल्स हमने देख लिए, हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, हमारा ये थोड़ा सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, ऑल दिस वी हैव पुट इन देयर प्रॉपर कॉलम, प्रॉपर हमने उसको रो में उसको डाल दिया। And now your concept of all the three categories of a transport, I hope it is clear. अब हमें करना क्या है? We have to now do the exercise, proper exercise from the chapter, from the content of the chapter. I will give you some one-word answers, some choose the correct options, some fill in the blanks. I will give not from the end of the chapter. जो chapter के end में जो exercise होती है that तो we do, हम हमेशा करते हैं, that we will definitely do. But उससे पहले हम करेंगे chapter के content में से, जो उसके बीच में से जो questions होते हैं, frame हो सकते हैं one word वाले या fill in the blanks या इस तरह से कुछ भी choose the correct option, that we will do to cover up the whole chapter, कि सारा content cover हो जाए और आपकी exercise भी हो जाए। तो ये एक हमारा डबल रिवीजन हो जाता है जब हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं कि चैप्टर के कंटेंट में से जब हम फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड या कुछ करते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है और एक प्रॉपर एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। व्हेन यू गो थ्रू द एक्सरसाइज योर चैप्टर विल बी ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड। तो ये हम करेंगे लेकिन अपने अगले वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड विल डू दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।